Nidhi, you know? Yes, sir. Tell me something about your personality. Sir, I'm a very dedicated and hardworking person who loves to take challenges, and I consider myself courageous also, with honesty. Courageous and honest. Huh? Yes, sir. You've done your graduation from electrical engineering from SGS ITS. Yes, sir. A very good institution. Thank you, sir. Yeah? Who inspired you to become an engineer? Sir, it was kind of self-inspiration only. I was doing mathematics and science well, so this was a field that inspired me to make things work. How things work was something I was driven about. So I thought engineering should be the right choice for me that time. Okay, engineering should be there. But why electrical? You should have gone for other branches. Why this? Sir, honestly I wanted to go for mechanical that time, but I could not get mechanical. So you are basically from Bhopal. I'm from Bhopal, sir. You're from Bhopal, but why you got the admission here in a GSIT? So this was the best college that we could get from PET. Achha, in 2016. 2012 I got admitted. 2016 I graduated. Yes, sir. ये गोविंद राम सक्सेरिया, इनके बारे में कुछ बता सकते हैं? सर, ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंदौर से. इनके पुत्र ने इनके नाम पर ये कॉलेज स्टार्ट किया था 1952 में. उस समय पर जैसे नेहरू जी का विजन था कि फॉर द डेवलप्ड इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस वी नीड टेक्निकल कॉलेजेस, वी नीड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस टू गेट अ गुड ह्यूमन रिसोर्स फॉर द development work that we are going to do. So this college was established that time. See, your father is in an army or what? Yes, sir, he's in army. He is presently serving in Saharanpur. Achha, he is presently as what? Subedar Major. Because you have done your initial schooling from army school. Yes, sir. Hempur, no? Hamirpur है कि Hempur? Hempur है, sir. In UP? Yeah, in Uttarakhand. Uttarakhand. Right. Hempur. Yes, sir. So you have done your initial schooling. Yes. Then you came to Saharanpur again, the posting, father. Yes, sir, Saharanpur. Tell me something about army schools, you know. Yes. आर्मी स्कूल्स में क्या अलग होता है और यहाँ क्या अलग होता है, कुछ बताएंगे? जनरल स्कूल्स होते हैं. Yes, sir. I have a little bit of comparison because from an army school I went to convent school. So the difference that I found was we have a greater amount of discipline in what we have to do our things, like our morning assembly starts or ends with march past. Along with that, the curriculum is designed as in the competitive spirit as well as the dedication towards the nation comes about. Plus, because army schools are pan-Indian schools, so there are many branches. So the amount of exposure that we get in all India army school competitions is a lot. And along with that, I would say inspiration towards serving the nation comes with school. Now the army, yes, sir. All three branches of the armed forces, yes, are open for girls. Yes, sir. Why you don't want to join any of the wings? There's so many, I know so many of them. They've joined Air Force as pilot. Yes, sir. Somebody has joined as in the army, and somebody Yes. has. Why you being from the army background? Why don't you want to join the armed forces? Sir, I want to join armed forces. I have filled forms and given exams also. I have went for SSB, Service Selection Boards, to FSP in Gandhinagar also. I was conference out that time. I could not make it to the merit list. I tried for army. After that, for pilot, I have I number, so I could not go for PABD test. And so why you were conference out? There was any reason? Sir, one thing was that I applied for technical entry in electrical engineering, and that time we have only 2 posts for girls all over India. So that was one of the reason. Also, I think they found me a little more sensitive that time. Okay. Because I remember from my interview, so they tell me that you are very soft spoken and on the sensitive side. So I tried to make them believe that being sensitive is not being weakness, but I think I could not make it that clear. So what about this personality trait of sensitiveness? How will you overcome this particular particular personality trait when you come into the civil services? Sir, I think for armed forces the criteria is little different. That for the sensitivity has to tone down a little bit, because there we are talking about the national security of the nation, and the standards are different. But when it comes to civil services,
then sensitivity and compassion are very important part. If we cannot understand the situation of the people, we will not be able to implement the things in the right manner, because then we'll be detached. Too much of objectivity in civil services is I don't think it's that much required. Acha, over the years, your father is there in the army, Yes, you've been with him for so long. What are those 3 qualities you have imbibed or you've learned Okay. during your, staying in the campus? Right. Because so many years you've been with your dad. Yes, sir. So what Till are my those 12th. 3 qualities you imbibed or you have, developed in yourself, Develop your myself. personality? First thing is time boundedness, because whenever we have functions in our army campus, the things start sharp on time and end sharp on time. We have to be in the standards that are given. We have to follow them very properly, and it gives a sense of discipline and pride in itself that we are doing things on time. We do not take time for granted. Second thing would be the amount of professionalism that I have learned, that the personal life takes a back seat in front of your professional life. That dedication always trumps. So that also I have learned. Third thing, it may sound negative sometimes, but what I have realized is that following the hierarchy and status quo is an important part. And sometimes it may look that we are just following the line, but that is important for the system to work properly. So this I have learned from army. Okay. Who has inspired you in the army, Okay. Can you name one of the officers or generals whom you think he has inspired you in your life, Because you have been under the umbrella of Right, army, sir. and you must Sir, have admired somebody. So there are two people. Some personality. Sir, or army personality. officer. Sir, there is 2 personalities actually. One person is Field Marshal General Manekshaw. But you have not seen him, no? I am talking about the current. Current Because one. you have seen yourself so many officers. Yes, sir. And where were you based earlier? Your father Saharanpur. was based? Earlier Meerut. 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 So Meerut is a big cantonment. Yes, it's a big cantonment, So sir. must be some lieutenant general. So we had, officers. yes, sir. We had Colonel V.K. Malhotra. Okay. So he was earlier in the army, in our unit only, and then he came as our principal in our army school. So I have been in touch with him with a lot that time because of the school activities and all. And he has really inspired me with his way of doing. One thing I remember very properly, it was a very cold day, cold morning in Meerut. Meerut has temperature around 2 to 5. So I was wearing gloves and hat, which usually I used to go. So he asked me, ki, where are you? I said, sir, in school. So why these gloves and hat? You are in army school. It shouldn't matter to you. So I took off my gloves and my headband that time. And then I realized that it's not just about your physical strength. It comes with your mental strength also. So that was one thing. That was one thing. So you're mentally very strong. You think yourself? Yes, sir. With time I've increased it, my mental strength. Sorry, I have taken a lot of time about the members. Sorry. Especially we were conversing only in English. And Sir. I don't know, now you have to Ji, switch sir. over to some other language. Ji, sir. Okay. What is expressive writing? Sir, it's a kind of creative writing, and it is not restricted just oneself to blog writing or journal writing. It's like diary writing, and it contains everything which has a lot of more expressions. Like emotions are a major part of it rather than the factual thing. So that I do. I was working, when I was working, I was head of the magazine committee at my workplace also. Okay. And during my college years, I was also chief editor of our Vagmita magazine and SG Cites Indore. Sure. क्योंकि आप भोपाल रहती हैं तो सब जानकारी तो है। जी तो सर। भोपाल में ये बताओ, वल्लभ भवन जो है जी सर। उसमें राज्य सरकार का मुख्यालय है, सचिवालय। जी सर। तो राज्य सरकार मतलब शासन भी बैठता है और सरकार भी बैठती है। जी। दोनों ही बैठते हैं ना, अब प्रशासन नहीं बैठता है। सचिवालय है जी। सचिवालय में जी। शासन भी बैठता है और सरकार भी बैठती है। सरकार। दोनों चीज समझ में? जी सर। तो दोनों के बारे में बताओ, शासन और सरकार। सर, शासन वो मशीनरी है
जो सरकार द्वारा दिए गए डिसीजंस को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है उस पर वर्क करती है। कि उसका मुखिया कौन होता है? उस सरकार का मुखिया होता है चीफ मिनिस्टर। मैं तो शासन की बोल हाँ रही हूँ ना। सर, शासन का मुखिया होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ। चीफ जी। सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार है ना? जी सर, जी अब सरकार पे आ जाओ, सरकार का काम बताओ। सर, सरकार का काम है, जो वो चुनी हुई सरकार है तो जो जनमानस की आकांक्षाएं हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, मतलब उसके अनुसार पॉलिसी बनाना या स्कीम्स लेकर आना। उसका मुखिया कौन है? चीफ मिनिस्टर। आप क्लियर हो गए ना? जी सर। अब नीचे आप आ जाओ। हाँ ठीक, ओल्ड सेक्रेटरीट में चलते हैं। ठीक। ओल्ड सेक्रेटरीट भोपाल के अंदर, जी, मिंटो हॉल पे। ओल्ड सेक्रेटरी, हाँ, वो जिसको पुराना सचिवालय बोलते हैं पुराना ना? सचिवालय। तो वहाँ जी। कौन सा कार्यालय है? जिला प्रशासन का कार्यालय वही तो है। जी जिला सर, प्रशासन, जिला कलेक्टर प्रशासन, कार्यालय है। कलेक्टर कार्यालय तो है। इसलिए मैं आपको ओल्ड सेक्रेटरीट ले गया। जी। कहाँ से? उधर से। उधर से। तो वहाँ जिला प्रशासन के बारे में बताओ थोड़ा सा, जहाँ आपकी नियुक्ति आप कराना चाहती हैं। जी सर, जिला प्रशासन जैसे मध्य प्रदेश में अभी 53 जिले हो चुके हैं। नहीं, आप तो भोपाल जिले की बताओ थोड़ा सा। अच्छा सर, जिला प्रशासन में ऊपर कलेक्टर ऑफिस आएगा, उसके बाद उनके नीचे एसडीएम्स आएंगे, एडिशनल कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर, फिर अपना एसडीएम्स आ जाएंगे, जिनके अंतर्गत ब्लॉक डिवाइडेड है। हर ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं। उसके बाद ग्राम पंचायत लेवल तक इसमें। आपने दो भाग में ये आप मैं पूछना चाहता था प्रशासन से। हाँ। और आपने प्रशासन के संग विकास बोल दिया, चलो हटा, कोई बात नहीं है ना। जी। ये मैंने इसलिए आपसे पूछा कि आपको जिला प्रशासन में काम करना है, तो जिला प्रशासन का एक काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन, और जिला प्रशासन का एक काम होता है डेवलपमेंट, जिसको जिला पंचायत बोलते हैं ना। जी, दो जी। भी अलग अलग मटेरियल, पर वो संबंध एक से ही चलता है। जी सर। चलो, अब महिला सशक्तिकरण के लिए कई सालों से कई योजनाएं बन रही है। तो शुरू से जितनी योजनाएं आपको याद है, लेटेस्ट वाली नहीं पुरानी, तो कुछ बता दो जितनी आपको याद है, महिलाओं से संबंधित कुछ योजनाएं जो आपको याद हो या आपको सुनने करने में आई, ध्यान में आया हो। राज्य सरकार की। जी सर, मुझे 2007 से याद आ रही है। 2007 से याद, जहाँ से याद आ गई वहाँ से याद करा सर, 2007 से लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ किया गया था, जिसमें हम बच्चियों को उनके स्कूल एजुकेशन तक उसको एक फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर रहे थे। इसके बाद हमने अभी लाडली लक्ष्मी 2.0 लेकर आए हैं, जिसमें हम उनके कॉलेज एजुकेशन तक को इंश्योर करना चाहते हैं। इसके बाद में लाडो अभियान का प्रारंभ किया गया था। इसके बाद में जो कुछ सेंटर की स्कीम्स हैं उन्हीं को हम अपने स्तर पे करें, जैसे जननी सुरक्षा योजना, फिर मातृवंदन योजना, जिसमें हम उनका मेटरनल मोर्टेलिटी कम करना चाहते हैं। इसके साथ में शौर्य दल का प्रारंभ, शौर्य दल किया गया है। भारत सरकार की एक महिलाओं से बहुत अच्छी योजना है, सबसे बढ़िया योजना है, महिलाओं से भारत सरकार की है। जी। क्या है सर? उज्ज्वला योजना है। वही क्लिक करना चाहिए आपको, है ना? जी। जिसमें उनको LPG में कम गैस वो रेट मिलेगा और वगैरह, उनको लकड़ी वकड़ी की दिक्कत नहीं आएगी, है ना? हाँ, LPG कनेक्शन दिया जाएगा। ध्यान रखना है, महिलाओं से संबंधित कर लेना, पर आगे फिर पूछेंगे। जी सर। निधि। जी सर। आपके नेम का मीनिंग क्या है? सर, ये पैसे से संबंधित है। धन का एक भाव है कि फंड जो एकत्रित किया जाता है आपके काम के लिए। नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट। जी सर। होशंगाबाद। जी सर। स्कूलिंग आपने सहारनपुर से की है ना? हाँ सर, पहले मेरठ से किया। उसके बाद फिर हेमपुर, सहारनपुर। सहारनपुर आप रही है ना? यस सर, 2 वर्ष रही हूँ मैं वहाँ पर। कुछ बता सकती हैं सहारनपुर के बारे में? सहारनपुर उत्तर प्रदेश में आता है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बॉर्डर पर, हरिद्वार से बहुत कम दूरी पर है। इसको काश नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर जो लकड़ी का सामान है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, और इसी के साथ में ये ऐसी भूमि है जो इसको ऐसा कहा जाता है देवबंद के बहुत पास है। तो एक अपना जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ऐसा शहर है जो 3 राज्यों की कनेक्टिविटी बनाता है। जी सर। हाँ, एक तरफ उत्तराखंड है, खुद यूपी में है, खुद यूपी में। तीसरा हरियाणा की तरफ जाना हो हमें तो भी जा सकते हैं। तो जा सकते हैं। जी सर, जा सकते हैं। बागपत से। वहाँ रही। हाँ जी सर। सर्वाधिक रूप से वहाँ संतरों का उत्पादन होता है, काफी ज्यादा आपने देखा होगा। हाँ, फ्रूट्स तो काफी सस्ते हैं। फ्रूट्स बहुत सस्ते हैं सर। फ्रूट्स हैं, गन्ने का उत्पादन बहुत। साल आप वहाँ 12th कर रही थी। जी। उसके आसपास सहारनपुर दंगे हुए थे, इंडिया में काफी हाईलाइट थे।
मुजफ्फरनगर में भी हुए थे उसे कुछ, हाँ उसी टाइम हुए थे। हाँ। तो उस टाइम पे आपने वहाँ की यथास्थितियों को देखा, आर्मी के काम को भी देखा। हाँ सर। आर्मी अफसर से आप प्रभावित होती हैं। जी। आर्मी स्कूल और सामान्य स्कूल जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट की होंगी या प्राइवेट जी, और वो सिटी में क्या डिफरेंट होगा दोनों में? सर करिकुलम में इतना डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि वो भी सीबीएसई बोर्ड वाले ही होते हैं, परंतु जो पेडागॉगी है तरीका पढ़ाने का, उसमें थोड़ा सा फ़र्क मैंने महसूस किया है। कुछ चीज़ें हैं जिन पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है आर्मी स्कूल्स में, बाकी स्कूलों में दूसरी चीज़ों पर मैंने महसूस किया है। जैसे हमारे यहाँ आर्मी डे बहुत उत्साह के साथ मनाया जाएगा, दूसरी जगह पे शायद बाकी सेलिब्रेशंस को ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ में हम लोग लंच के बाद श्रमदान ज़रूर किया करते थे कि जैसे कई बार मैंने महसूस किया है कि प्राइवेट स्कूलों में सुविधाएं बहुत ज़्यादा दिए जाने पर भी ध्यान दिया जाता है कि, और ये शायद डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी भी है कि आपके पास अच्छे स्कूल्स, अच्छे क्लासरूम्स होने चाहिए। हमारे साथ ऐसा होता था कि लंच के बाद हर एक सेक्शन का लगता था कि आज लंच के बाद 6D पूरा ग्राउंड साफ़ करेगा, 7D ग्राउंड साफ़ करेगा। तो एक बहुत ही कलेक्टिविज़म और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना मैंने वहाँ महसूस करी है सेंट मेरीज़ के कंपैरिजन में। सर ने जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा था के नीचे के पद पर, जी, उसमें थोड़ा सा कुछ मिस्टेक्स हुई थी, सुधार की गुंजाइश है जी सर। काफ़ी सारी, पर मैं आर्मी बैकग्राउंड से रिलेटेड ही पूछता हूँ क्योंकि आपके फादर ऐसा में सूबेदार मेजर पोस्ट था। जी सर। उससे पहले उससे किस पोस्ट पर थे वो? सूबेदार पर थे। सूबेदार। और उससे नीचे? उससे पहले नायब सूबेदार पर थे। और सर उनका 97 में ही ज्वाइनिंग हुआ था। वो आर्मी में धर्मगुरु के पोस्ट पर हैं 97 से, और अभी हम आरवीसी में हैं, रिमाउंट वेटनरी कॉर्प्स में। तो धर्मगुरु जी। धर्मगुरु हिंदुओं के लिए अलग आर्मी में भर्ती किए जाते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनके लिए अलग किए जाते हैं, रैंक पोस्ट वही रहती है। जी, ठीक है। ऐसी क्या क्वालिफिकेशन इसमें एडिशनल लगती है जिसमें सिलेक्शन होता है? सर अभी ऐसा हो रहा है कि आपका आचार्य होना नेसेसरी है, वो आप कहीं से भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट भी होता है और एक रिटन एग्जामिनेशन भी होता है। इसके बाद आपको, अगर आप मेरिट में आते हैं, वो पोस्ट के अनुसार डिसाइड होता है। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन में ट्रेनिंग का कोर्स आपको पास करना पड़ता है। रूरल डेवलपमेंट में आपका स्पेशल सर्टिफिकेट कोर्स किया है सर। रूरल डेवलपमेंट के लिए एमपी गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसियां चला रही है, कुछ जानकारी है आपको? सर रूरल डेवलपमेंट में हम कनेक्टिविटी के लिए ग्राम सड़क योजना कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके साथ में हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, मतलब कि मनरेगा स्कीम चल रही है एम्प्लॉयमेंट के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद में हम एक रूरल यंत्र प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह को दिया जा रहा है उसमें। एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे कि गांव को बढ़ावा देंगे? विशेष रूप से एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस हो गया ना। जी सर। क्योंकि दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। हाँ, परंतु अभी जैसे हमारी इकोनॉमी है जो मोस्टली एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है रूरल लेवल पर, तो अगर हम उससे इनकम तो समस्त समाहित हो जाएगा, कुछ वंचित ही नहीं रह जाएगा। जी। इस धरती लोक पे जितना भी उपलब्ध है उसमें कुछ बाकी रह जाता है उस विषय वस्तु में। ऐसा सब्जेक्ट है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट नहीं, रूरल डेवलपमेंट मतलब गांव का विकास। गांव में ऐसी क्या चीज, क्या होना चाहिए, है ना? आधारभूत संरचनाएं होनी चाहिए, सड़क, बिजली, पानी, और इसके साथ में अब ग्राम नेट के द्वारा हम इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओवरऑल ग्राम में जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, आंगनवाड़ी केंद्र हैं, स्कूल की योजनाएं हैं, ये सब वर्षों से ये सब चीजें प्रोग्राम चल रहे हैं। जी। जब रूरल डेवलपमेंट की बात होती है 1952 को हम याद करते हैं। हाँ, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। जी सर। उसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम आए। हाँ, फाइव-ईयर प्लानिंग प्रोग्राम। हाँ जी। महात्मा गांधी जी के प्रयास से लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तक का प्रयास दिखता है, या फिर इंदिरा जी का प्रयास दिखता है। आवास योजना उनकी एक महत्वाकांक्षी योजना थी। जी सर। इधर एक शख्स का नाम आता है 92 के बाद, नानाजी देशमुख, ग्रामोदय से राष्ट्रोदय। जी सर। हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन उनके प्रोग्राम का यही नाम है। जी सर। आपने पढ़ा भी है। हाँ जी सर। इस प्रोग्राम में क्या विशेष था? सर अभी मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है इसके बारे में। सर्टिफिकेट नहीं है आपको जानकारी? सर ये आपकी हॉबी क्या है? सर एक्सप्रेसिव राइटिंग और एस्ट्रोलॉजी। राइटिंग में किस तरीके से आप लेखन करती हैं? सर
प्रॉपरली। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट एक्ट के बारे में बता सकते हैं? सर कॉपीराइट एक्ट आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है एक तरीके का, अगर आपका कोई यूनिक या ओरिजिनल काम है तो आप उसका कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो आप आपने उसके जो लिए। भी आज तक लिखा वो कभी पब्लिश हुआ क्या? सर कॉलेज मैगजीन में हुआ है। कॉलेज मैगजीन में हुआ। हाँ RNI नंबर क्या होता है? जी सर। RNI नंबर क्या होता है? RNI सॉरी सर याद नहीं आ रहा है। ISBN नंबर क्या होता है? जानकारी है? ISBN नंबर तो इंडस्ट्रियल का एक नंबर है। इंडस्ट्रियल का नंबर है? हाँ। प्रिंटिंग का नंबर है सर। जब कोई किताब पब्लिश होती है तो उसको एक ISBN नंबर प्रोवाइड किया जाता है। हमारी आप सबकी एक आईडी है, आधार कार्ड है, उसी तरीके से किताबों की पहचान होती है। पहचान होती है है ना? ISBN अगर हमें नंबर। इंटरनेशनल लेवल पर किसी बुक्स को या नेशनल लेवल पर पहचानना है कि किस ऑथर की बुक है, किस पब्लिकेशन से की बुक है, तो किससे पहचान कर पाएंगे? ISBN नंबर से। ठीक। जी। बोर्ड से कुछ कहना है आपको? मुझे अपने हॉबी के बारे में पूछना था। ये तो आप बता देंगे। हाँ। कुछ कहना है और? थैंक यू बोलना है आपके इस अमूल्य समय के लिए। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद।